Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. You're watching my YouTube channel about spoken English, MA English, political science, history, plus CSS with your favorite Miss Harim. Today I will let you know about the job interview. How will you introduce yourself whenever you go for the job? They will ask some questions to you, then you will have to answer them. Before starting the today's discussion or today's topic, you have to subscribe to my YouTube channel and press the bell icon. They will ask you about yourself and you will have to answer them like she says, tell me about yourself. इस पिक्चर में आप आसानी से देख सकते हैं. So you have to mention all your details. For example, number 1 is start with your name. You should tell about your name like my name is Miss Harim. Give your place information. You will mention about your residence. For example, I live in Lahore, Islamabad, Quetta, Karachi. The next is education in short. You will mention your education, your qualification. For example, I did masters in English, political science, history, CSS, B.Ed. Okay, you can mention your qualification. The next, job experience if any. If you have any job experience, then you may share. क्योंकि जब आप जॉब एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा अच्छा असर पड़ता है जब भी आप जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी इस जॉब का एक्सपीरियंस होता है तो वो आपको ना एक प्रायोरिटी देते हैं और आप में फिर इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं. यहाँ से आपका एक इंटरेस्ट स्टार्ट होता है, इंटरेस्ट लेवल उनका स्टार्ट होना शुरू हो जाता है कि वो आप में इंटरेस्ट लेते हैं. देन फैमिली डिटेल्स इन शॉर्ट. फैमिली के बारे में बट इतना ज़्यादा आपने मेंशन नहीं करना. आपने थोड़ा सा फैमिली के बारे में, ये नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा डिटेल मेंशन कर देनी है और बाकी डिटेल्स आपकी उसके सामने थोड़ी लगें. देन फॉर एग्जांपल, माय नेम इज़ Shreyas. I live in Mumbai. I have done BE in electrical and MBA in HR. I have 2 years experience in HR and I live with my family in Mumbai. Then they will ask about you. For example, they will ask what are you currently doing. आप इससे पहले क्या कर रहे थे. So you have to mention. For example, यहाँ पे लिखा हुआ है my work is important to me. मैं अपने काम को बढ़तरी देता हूँ, मतलब अवलियत देता हूँ. And so instead of rushing to accept the first thing that comes my way, I am taking my time and being selective to make sure my next role is the right one. I am working on several freelance projects while actively job seeking. I am spending time being a stay at home mom and volunteering at my daughter's school. I am taking some continuing education classes and seminars. अब इन शॉर्ट आपने यहाँ पे क्या मेंशन कर देना है, आपने बताना है कि आप अपने वर्क के साथ कितने ऑनेस्ट हैं. ठीक है. एंड देन आपने कहना है कि आप किस चीज़ के साथ एफिलिएटेड हैं, जुड़े हुए हैं. फॉर एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पर इस बंदे ने अपने बारे में मेंशन किया है कि वो सेवरल प्रोजेक्ट्स में उसका इंटरेस्ट है और वो उनको लेकर चल रहा है. एंड देन फिर उसने थोड़ा सा फैमिली के बारे में, होम को डिस्कस कर दिया, अपने घर को भी, क्योंकि आपने नेगलेक्ट नहीं करना होता, वो भी आपकी जिम्मेदारी होती है और आप उसका हिस्सा होते हैं. एंड देन नेक्स्ट आपने कहना है कि मैं अपनी एजुकेशन कंटिन्यू कर रही हूँ या कर रहा हूँ, या फिर आप कोई साथ कोई डिप्लोमा कर रहे हैं, तो वो सारा कुछ आपने बता देना होता है. ये सब बातों के जवाब आपने तब देने हैं जब आपसे वो इंटरव्यू वाला पर्सन, लेडी और मैन, आपसे कहता है व्हाट आर यू करंटली डूइंग. Then he may ask from you that why did you leave your previous jobs. कि तुमने अपनी प्रीवियस जॉब क्यों छोड़ी. I have earned a lot from my current role, but now I am looking for a new challenge to broaden my horizons and to gain a new skill set, all of which I see the potential for in this job. I am looking forward to better opportunity to grow in job wise and financial wise, and I want to learn more things where I am working. I am working for a job where I can grow with the company. I am looking for a job that suits my qualifications.
I was laid off, made redundant redundant because the company relocated, downsized, needed. अब यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया अपने बारे में कि मेरी जो करंट जॉब थी या करंट रोल जो मैं परफॉर्म कर रहा था उसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा अर्न कर लिया है, मैंने इतना ज़्यादा कमा लिया, लेकिन अब मैं जो हूँ मेरी क्वालिफिकेशन मेरे स्टेटस के साथ जो जॉब इक्वल हो मैं वो उसको ज्वाइन करना चाहता हूँ, मतलब चाहता हूँ या चाहती हूँ मेरी जितनी क्वालिफिकेशन है, क्योंकि मैं अपने स्टेटस को मेंटेन रखना चाहता हूँ। इस तरह से आपने अपने आर्ग्यूमेंट देकर अगले बंदे से बात करनी है जब वो आपसे पूछेगा कि आप अपनी प्रीवियस जॉब को क्यों छोड़ रहे हैं। मैं एक कंपनी के लिए काम करना चाहती हूँ, ऐसी कंपनी जो कि बाद में ग्रो करे, और जब वो ग्रो करे तो मेरा भी नाम हो, ठीक है। Then they may ask about, tell me about a difficult situation you have faced, कि ऐसी मुझे कुछ difficult situations बताएं जो कि आपने अपनी लाइफ में फेस की हो। Then you may mention that in my last job I sometimes had to find answers to IT questions। एक दफ़ा मेरे साथ ये हुआ कि मुझे IT के आंसर्स चाहिए थे कुछ क्वेश्चंस के। I would often go on the internet and look for blogs on the topic I needed to learn about। I enjoy learning new things, so search is actually one of my hobbies. I have faced a number of difficult situations, but the one that comes to my mind now is I was able to deal with it by assessing the situation, determining the possible different approaches, and deciding on the most effective one. I had to remain unemotional and objective and focused on a solution. I am perfectionist and I may be too hard on myself or my co-workers sometimes। अब यहाँ पे आपने ये चीज़ में अपना कोई भी एक्सपीरियंस आप मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि इस पर्सन ने मेंशन किया है कि उसको आईटी के कुछ क्वेश्चंस चाहिए थे, देन वो इंटरनेट पे गया, काफ़ी फाइंड आउट किया, बट वो अनइमोशनल नहीं हुआ, उसने इस चीज़ को चैलेंज लिया और साथ ही साथ उसने जितनी भी सिचुएशंस थी या फिर जो भी उस टाइम में सिचुएशन और जो चीज़ वो फेस कर रहा था उसको उसने अपनी पॉजिटिव व्यू में बना लिया। एक चीज़ होती है ना, आप उसको नेगेटिविटी में देखते हैं और एक चीज़ होती है आप उसको पॉजिटिविटी में देखते हैं, तो इसने उसको पॉजिटिव सेंस में ही किया, क्योंकि जब आप पॉजिटिव सोचते हैं तो तब आप पॉजिटिव करते हैं और आपके साथ इन रिटर्न पॉजिटिव होता है। देन फिर इसने क्या किया कि मैंने काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क किया है और मैं एक परफेक्शनिस्ट हूँ, मतलब मैं अपने काम में माहिर हूँ और मुझे अपने यहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस पता चलता है कि आपका अपने ऊपर कितना कॉन्फिडेंस है। एक इंसान होता है जो खुद पर कॉन्फिडेंस रखता है, दूसरों पर डिपेंड नहीं करता। Then he may ask, what are your weaknesses? So you may mention that I have never been very comfortable with public speaking। अच्छा है, काफ़ी सारे लोगों का ना ये इशू होता है कि वो पब्लिक में बोलते हुए उनको बहुत ज़्यादा हिचकिचाहट होती है या फिर वो शर्मा रहे होते हैं या फिर उनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है। सो बिल्ड योर कॉन्फिडेंस, ठीक है, आपने अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना है और अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रहना है, विच एज यू नो कैन बी अ हिंड्रेंस इन द वर्क प्लेस। रियलाइजिंग दिस वॉज अ प्रॉब्लम, I asked my previous employer if I could enroll in a speech work. He said yes. I took the class and was able to overcome my lifelong fear. Since then, I have given lots of presentation to audience of over 100 high-level executives and I still don't love it, but no one else can tell. I have had trouble in the past with planning and prioritization. However, I am now taking steps to correct this. I just started using a pocket planner. I might need to learn to be more flexible when things are not going according to plan. This is something I am working on at the moment. अब यहाँ पर इस पर्सन ने जो अपनी एग्जांपल दी है वो एक एम्प्लॉयर के हवाले से और एग्जीक्यूशन जो उसने एक प्रेजेंटेशन पेश की है उसके हवाले से बात करता है, बट यहाँ पर आपने अपना एक्सपीरियंस ही मेंशन करना होगा। देन आपने क्या कहना है कि मैंने जो है काफ़ी ज़्यादा मुझे ट्रबल हुई थी प्लानिंग, और क्योंकि प्लानिंग जो होती है वो आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है जब भी आप कुछ करने के लिए जा रहे होते हैं। अब मैं जो हूँ अपनी इस कमज़ोरी को ठीक करना चाहता हूँ, अब या फिर मैं इस कमज़ोरी मैं एक स्टेप आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं इस सिचुएशन में ना रहूँ। आई हैव टू गो फॉरवर्ड। अब इसी तरह से ये कहता है मैंने पॉकेट प्लानर को यूज़ किया,
जब चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो रही थी तो मैं खुद फ्लेक्सिबल हो गया हूँ, मैं खुद उनके अकॉर्डिंग चलना स्टार्ट हो गया हूँ। ठीक है, तो यानी जब हालात जो है ऐसे हो जाते हैं कि आपको यानी चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, सिचुएशन आप पर बहुत ज़्यादा हावी हो जाती है, देन यू हैव टू ओवरकम। आप अपने आप को फ्लेक्सिबल कर लें कि आप ऐसे हो जाएं कि आपने हर सिचुएशन में, हर सर्कमस्टांस में आपने कैसे सर्वाइव करना है। देन यहाँ पर उस पर्सन का ना आपकी तरफ इंटरेस्ट और ज़्यादा बिल्ड करता है, एंड देन वो आपसे पूछ सकता है वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 3 or 4 years फ्रॉम नाउ, कि तुम जो आगे 3 या 5 साल के दौरान का जो अर्सा है, इस दौरान में तुम अपने आप को कहाँ पे देखते हो। देन यू मे आंसर दैट अल्दो इट्स हार्ड टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर, क्योंकि कोई भी इंसान ना अपने फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, कोई प्रिडिक्शन पेश गोई नहीं कर सकता। आई सिंसियरली बिलीव दैट आई विल बिकम अ वेरी गुड फाइनेंशियल consultant. I believe that my abilities will allow me to excel to the point that I can seek other opportunities as a portfolio manager. Portfolio means the next step and possible even higher. In 5 years, I see myself as a valued employee of a company. I want to be an expert at my position and start training to be a manager. My goal is to become a lead in 5 years. Although not everyone gets promoted to this level, I believe I can achieve this goal. तो हार्ड वर्क। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आप हैं या जॉब के लिए गए, आप अगले बंदे को अपनी तरफ मतवज्जा कर रहे हैं, अपना इंटरेस्ट, अपने बारे में उसके अंदर इंटरेस्ट डाल रहे हैं। अब यहाँ पर वो अपनी एबिलिटीज़ को मनवा रहा है, जो भी पर्सन है, कहते हैं कि मैं ना फाइनेंशियल कंसल्टेंट के तौर पर देखूँ तो मैं अपने आप को एक अच्छे मुकाम पर देखता हूँ फ्यूचर में, या फिर आप ये कह सकते हैं कि मेरी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो मेरे मौके हैं, वो मुझे लग रहा है कि मैं आगे ज़रूर जाऊंगा, एंड मैं एक वैल्यूड एम्प्लॉय हूँ कि किसी भी कंपनी का, जिसकी वैल्यू की जाती है, जिसकी इज्जत जो कि नुमाया है बाकी जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनमें। अगर हर कोई इस लेवल तक नहीं पहुंच सकता, बट मैं अपने आप को देखता हूँ कि मैं इस लेवल पर या इस पीक पर, पीक कहा जाता है ऊंचाई पर, मैं इस पीक पर ज़रूर जाऊंगा। अब यहाँ पर वो जो पर्सन जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, देन ही मे आस्क और शी मे आस्क दैट व्हाई शुड वी हायर यू, कि हम तुम्हें क्यों हायर करें। तो आपने कहना है कि आई एम फास्टर लर्नर, ये आप में से कोई भी, आप किसी भी जॉब के लिए आप ये वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। आई हैड टू लर्न अ टोटली न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम इन माई लास्ट जॉब एंड आई was up and running within a couple of weeks. You require someone who can perform a wide range of administrative duties. I have a track record of carrying out these different tasks effectively and successfully. I have the right combination of skills and experience for this job. I also bring the additional quality of strong analytical and problem solving ability as shown by my introduction of a more effective workflow system at ABC company. अब यहाँ पर वो मेंशन कर रहे हैं अपने बारे में कि मेरे अंदर या फिर ऑपरेटिंग यानी किसी काम को करने के लिए या फिर इस जॉब के जितने भी टास्क होंगे मैं उनको बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। यानी यहाँ पर भी आपका कॉन्फिडेंस आपका स्टार्ट से एंड तक वो लूज़ नहीं होना चाहिए। एंड देन वो कहते हैं कि मैं जो हूँ अब जो एडमिनिस्ट्रेटिव यानी इंतज़ामिया की जो ड्यूटी होती है, जो कि लीड करती है, लेकर चलती है सारे सिस्टम को, तो कहते हैं मेरे अंदर वो क्वालिटी भी है और मैं बहुत अच्छे से इफ़ेक्टिवली और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुली इस टास्क को कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मेरे अंदर ये स्किल्स हैं। एनालिटिकल मतलब मैं हर चीज़ को समझ सकता हूँ और उसके बारे में मेरी एक जो सोच है वो तज्जिया कर लेती है और हल निकाल लेती है, या फिर मैं बहुत अच्छे से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता हूँ और मैं इस अगर जितना भी वर्क होगा ABC कंपनी में उसको मैं बहुत अच्छे से लेकर चलूँगा। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आपकी हॉबीज़ क्या है, तो आप डेफिनेटली मैच को मेंशन करें, ठीक है, जो क्रिकेट मैच होता है। क्यों? क्योंकि उनमें प्लेयर्स जो है ना, जैसे ही हिम्मत हार देते हैं या फिर हौसला खो देते हैं तो फिर वो क्या होता है कि वो वैसे भी हार जाते हैं। तो ये जो आपकी लाइफ है उसके साथ अपनी हॉबी को रिलेट करके उनको बताएंगे तो ये बहुत अच्छा इंप्रेशन जाएगा। आपने ये कहना है कि ये मेरी फेवरेट हॉबी है और ये इस वजह से क्योंकि
आपका कॉन्फिडेंस और आपके अंदर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ही मेन चीज़ होती है। जब आप वो लूज़ कर देते हैं तो फिर आप कुछ नहीं रहते, लेकिन जब आप उसको लेकर चलते हैं तो आप एक सक्सेसफुल पर्सन बनकर उभर कर आते हैं। देन व्हाट आर योर वीकनेसेस? आपने कहना है स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड impotent, sensitive, more talkative. Trust people very quickly. I can't say no when someone asks for help. Take decisions very quickly. Get nervous when talk to strangers. Strangers अजनबी को कहा जाता है. For example, यहाँ पे explain भी किया गया है. I can't say no when someone asks for help and I am a bit lazy in which I am not interested. और वाकई में जिस चीज़ की तरफ आपकी दिलचस्पी नहीं होती उसमें आप सुस्त हो जाते हैं. What are your career goals? You may mention short-term goals and long-term goals. For example, my short-term goal is to get a job in required company where I can utilize my skill and improve my career path. My long-term goal is to be respectable position in that organization. कि मैं जो हूँ, मेरा जो शॉर्ट टर्म गोल है वो ये है कि मैं एक कंपनी में जो मेरी रिक्वायरमेंट है मैं उसको जॉब को गेन कर सकूँ, उसको हासिल कर लूँ और अपने स्किल्स को मनवा सकूँ, अपनी स्किल्स को इस्तेमाल में ला सकूँ. बट मेरा लॉन्ग टर्म गोल ये है कि मैं एक रिस्पेक्टेबल पर्सन बन के उभरूँ, अच्छी पोजीशन हासिल कर लूँ. व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स? अडेप्टेशन, हार्ड वर्किंग, ऑनेस्ट, फ्लेक्सिबिलिटी, ऑप्टिमिस्टिक. ऑप्टिमिस्टिक कहा जाता है पूरी उम्मीद को. Fast decision making, self-motivated. I am honest, self-motivated and hard-working person with positive attitude towards my career and life. Why are you looking for a job change? Thanks, explain what you learned from past job. Share your reason for job change. अपना reason share करें कि आप job क्यों change कर रहे हैं. Relate to career goals. अपने career goals के साथ लेकर चलकर अब उस बंदे को explanation देनी है. I am thankful to my previous organization because I have learned a lot of things from there. कभी भी आपने प्रीवियस जॉब की या फिर प्रीवियस जो आपका एक्सपीरियंस रहा है उसकी आपने बुराई नहीं करनी, ठीक है, वरना वो चीज़ आपके एक नेगेटिव मतलब आप पर फिर नेगेटिव सेंस जाएगा, वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा. अकॉर्डिंग टू मी चेंजेस आर नेसेसरी फॉर एवरीवन टू एनहांस योर स्किल्स, नॉलेज एंड फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड फाइनेंशियल ग्रोथ. Your organization is a good platform where I can learn more. Why should I hire you? ये चीज़ें आप सारी मेंशन कर चुकी होंगी. देन फाइनली वो पर्सन आप में इंटरेस्ट लेने लग जाएगा एंड ही और शी विल आस्क अबाउट योर सैलरी रिक्वायरमेंट्स. आपके बारे में पूछेगा कि आप कितनी सैलरी एक्सपेक्ट करते हैं. मतलब अब आप जो है उनकी एक्सपेक्टेशन पर, जो उनको जैसा पर्सन चाहिए था आप उस पर पूरे उतर गए हैं. नेवर शेयर योर सैलरी रिक्वायरमेंट्स as a fresher. Experienced candidate can share their expected salary. Always say yes as per the company norms for the job. कभी भी आपने अपने आप को फ्रेशर शो नहीं करना, ठीक है, कि आप फ्रेशर हैं और आप जो हैं आपने अपनी सैलरी की जो एक्सपेक्टेशंस है ना अपनी एबिलिटीज़ के मुताबिक ही बतानी है. आप जब लो बताएंगे ना अपने आप को, अपनी लो रिक्वायरमेंट रखेंगे तो फिर अगला बंदा भी आपको उतनी वैल्यू नहीं देगा, ठीक है. अपने आप को जितनी आपकी एबिलिटी है आप उसके अकॉर्डिंग उसको आंसर कर दें. देन फॉर एग्जांपल आई एम अ फ्रेशर, सैलरी इज़ नॉट फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर मी. आपने ये भी नहीं कहना कि टोटली उस बंदे को ये लगे कि आप इतनी ज़्यादा सैलरी एक्सपेक्ट करें, बल्कि आपने कहना है कि सैलरी मेरे लिए प्रायोरिटी नहीं है, मैं तो अपनी स्किल्स को मनवाना चाहता हूँ. There is a big platform to start my career and I also want to improve my knowledge and skills and gain experience. So I expect a considerable of salary according to my ability and company's norms which will fulfill my economical needs. इतनी होनी चाहिए कि मैं अपनी माशी ज़रूरियात को पूरा कर सकूं. लेकिन फिर भी अगर वो पर्सन आपसे पूछता है, इंसिस्ट करता है, तो तब आपने अपनी रिक्वायरमेंट जो बतानी है, सैलरी की एक्सपेक्टेशंस बतानी है, वो आपकी एबिलिटीज़ के मुताबिक होनी चाहिए, ठीक है. अपने आप को जब आप लो करते हैं तो अगला बंदा भी, आजकल के माशरे में, आजकल के दौर में भी यही है कि अगला बंदा भी आपकी कदर नहीं करता. So I hope this topic was very interesting or you have learned a lot from this video.
or do not forget to give your views in comment section, as I always said. So you have to subscribe to my YouTube channel and press the bell icon. Okay then, Allah Hafiz and take care.